With the Republic Day celebrations less than a day away, the Indian Armed Forces along the line of control in Jammu and Kashmir have tightened their vigil night and day. My colleague Ashik Mir has filed an exclusive report from the Uri sector in Kashmir showcasing the army's efforts in Kashmir. Have a look. All right, we'll put out that report for you momentarily. Ajay Jandyal, first up, is joining us at this point in time. Ajay, Republic Day is here. Of course, this is also something that brings about a cauldron of security, agencies are extremely circumspect. What kind of preparations do we see in Jammu and Kashmir? Well, see, Uday, security has been beefed up here in the Jammu and Kashmir and the Punjab border, neighboring Punjab border as well, because we know that how continuous threats, perception is there because security forces got some specific input that terrorists, they could try to basically reshape peace over here in the Jammu and Kashmir, and especially, ahead of this Republic Day, Pakistan want these terrorists, those who are sitting across the line of control and the international border area, to be here in the Jammu and Kashmir to carry out major attacks here, because we have seen that most of the terrorists from Kashmir that have been eliminated by the security forces, and the rest of the terrorists who are here, they are hiding in the forest area. So the plan of the Pakistan is to basically once again push in terrorists over here in the Jammu and Kashmir and carry major attacks here. And ahead of that Republic Day, security forces, they have deployed additional troops on the line of control and the international border area. Even we have spent night, whole night there on the international border area here in the Kathua and Punjab district, and where we have seen that how forces, BSF troopers here, they are continuously monitoring the situation. They are doing patrolling even after there is a threat of sniping, there is a threat of infiltration, there is a challenge of dense fog, and temperature is 3 to 4 degrees during the night on the borders, but even after that they are ensuring that our nation's border remains safe, and Pakistan's nefarious plan of pushing in terrorists and disturbing peace over here, that has to be foiled. Ajay, thank you for that. In fact, let's also take a look at that special report which has been filed by my colleague Ashik Mir. लगातार हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से सेना के जवान यहाँ पर LOC पर सतर्क है, और हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जवान यहाँ पर इस फॉरवर्ड पोस्ट पर सर्वेलेंस में जुड़े हैं। इन तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ से जो है एक जवान जो है थर्मल इमेज के ज़रिए जो है सर्वेलेंस पर है, और दूसरे जवान की जब बात आती है तो दूसरा जवान यहाँ पर LMG लगाए हुए ताक यहाँ पर है। और किस तरह से जब इस तरह के मौके, यानी जो बड़े दिन होते हैं, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे, किस तरह से पार से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है उसको जो है उसमें जो है तनाव पैदा किया जाए, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उस सूरत हाल में किस तरह से यहाँ पर जो है ये सर्वेलेंस लगाया गया है। एक फॉरवर्ड पोस्ट पे हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे एक ऑफिसर से बात भी करने की कि कितना मुश्किल है, अगर हम इन दिनों की बात करें 26 जनवरी हो या इंडिपेंडेंस डे हो, तो किस तरह के प्रयास पार से किए जाते हैं ताकि यहाँ पर जो है अमन की सूरत हाल को बिगाड़ा जा सके। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है कितनी इक्विप्ड है, ये इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, किसी भी कंडीशन में जवान के लिए यहाँ पे कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है और कुछ भी टफ़ नहीं है। हम 24 घंटे 7 दिन 12 महीने इसी काम को करते हैं। हमारा मेन मुद्दा ही यही है कि हमें अपनी फेंस की लाइन ऑफ कंट्रोल की रक्षा करनी है और किसी भी तरीके की इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, किसी भी तरीके की घुसपैठ को रोकना है। रही बात सामने हमारे दुश्मन की, चाहे वो आतंकवादी हों, चाहे दुश्मन सामने आर्मी हो, हमें उनसे अपनी सरहद की रक्षा करनी है। इसी चीज़ पे हमारा फोकस दिन और रात बना रहता है। बिल्कुल। जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे कितनी मदद मिली है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है, इससे जो है काफ़ी सहूलियत हुई होगी। बिल्कुल, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी हमें दी गई है, नए नए तरीके के आधुनिक उपकरण प्रोवाइड किए गए हैं। डे सर्वेलेंस, नाइट सर्वेलेंस डिवाइसेस, हमें एरियल सर्वेलेंस करने के लिए क्वाडकॉप्टर प्रोवाइड किए गए हैं। इनकी मदद से हम दिन और रात फेंस की पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे सामने वाले इलाके का नज़र रखते हैं ताकि किसी भी तरीके की घुसपैठ यहाँ पे ना हो सके। यहाँ पे
जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोकने के लिए हमारा एक बहुत ही अच्छा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी बनाया गया है। हमारे ड्यूटीज़ का सिस्टम, जवानों को रोटेट करने का सिस्टम, उसको एक तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी भी तरीके की घुसपैठ को नज़रअंदाज ना किया जा सके। बिल्कुल, किसी भी तरह के घुसपैठ को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम बिल्कुल बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सरहद पर जो हिफाजत की जाती है इन सरहदों पर, और ख़ास तौर पर अगर हम जवानों की बात करें तो किस तरह से यहाँ पर जवान जो है इन फॉरवर्ड पोस्ट पर दिन रात यानी 24 घंटे लगे रहते हैं ताकि देश में जो आम इंसान है वो चैन सुकून से रहे। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर जवानों के हवाले से जो है नए नए आलात इनको दिए गए हैं ताकि सर्वेलेंस जो है ठीक तरीके से किया जाए। हम आपको फिर से एक बार तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है सर्वेलेंस लगाए गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मकसद ये है कि जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स है यानी जितने भी इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स है उनको जो है नाकाम किया जाए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम उड़ी की बात करें तो हाल ही में यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो एक बड़े घुसपैठ को जो है एक साजिश जो है उसको जो है मैं बताऊंगा कि उसको नाकाम किया गया, जहां 3 दहशतगर्दों को भी मार गिराया गया जब अगर हम उड़ी सेक्टर की बात करें। लेकिन इस तरह के अटैम्प्ट जो है बार बार किए जाते हैं ताकि अमन की सूरत हाल को जो है उसको बिगाड़ा जा सके, क्योंकि अगर हम साल 2019 के बाद की बात करें तो कश्मीर के हालातों में जिस तरह का सुधार है, और वो सुधार पार जो बैठे लोग हैं, पार जो लॉन्चिंग पैड्स पर बैठे जो टेररिस्ट है उनको बर्दाश्त नहीं होता है, और वो चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अमन की सूरत हाल को जो है बिगाड़ा जा सके। हम यही कोशिश जवानों की भी रहती है। यहाँ पर 24 घंटे जो है इसी फेंस पर पहरे लगाए जाते हैं यानी पेट्रोलिंग की जाती है ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ से जो है वक्त पर निपटा जा सके। अगर हम फ़ौज की बात करें तो लगातार यहाँ पर प्रयास रहता है कि किस तरह से जो है इनफिल्ट्रेट, अगर पार की बात करें पीओ के, ये जो आप यहाँ से इलाका देखते हैं ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद का इलाका है, बिल्कुल हम इसके पास में है। और यहाँ पर किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपको तस्वीरों में साफ़ तौर पर हम दिखा रहे हैं। कहने की बात यह है कि यहाँ पर 24 घंटे सेना के जवान जो है सतर्क है और सरहद पर सेना के जवान बिल्कुल तैनात है। किसी भी इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए यहाँ पर 24 घंटे पहरे लगे रहते हैं। आबिद खान के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ के लिए उड़ी से। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर के LOC के बिल्कुल पास में, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आज आपको इस ख़ास रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरह से सेना के जवान इन सरहदों पर सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और साथ साथ जहां देश के लोग आराम से चैन सुकून से रह रहे हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है ये जवान जो यहाँ पर पेट्रोलिंग, रात के करीब 12 बज चुके हैं और रात के 12 बजे आपको ये जवान जो है इस ठंड में, ठिठुरती ठंड, और इस ठंड में किस तरह से पेट्रोलिंग की जाती है। बिल्कुल हम फॉरवर्ड पोस्ट पर आ चुके हैं जो कि उड़ी सेक्टर में है। हालांकि आप देख सकते हैं कश्मीर में बर्फ़ कहीं पर नज़र नहीं आएगी, लेकिन इस पोस्ट पर आपको बर्फ़ जो है दिखेगी। और ख़ास तौर पर अगर हम इन सेक्टर्स की बात करें, गुरेज़, टंगडार, मत्सल, ये वो सेक्टर हैं जहां पर आपको बर्फ़बारी नज़र आएगी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से इन सरहदों पर जो है थर्मल इमेज के ज़रिए जो इक्विपमेंट्स, हाईली इक्विपमेंट्स, और ये फॉरवर्ड पोस्ट है, बराबर आपको फेंस दिखेगा, उस पार जो है दुश्मन ताक में लगा रहता है कि किस तरह से यहाँ पर जो है इन्फिल्ट्रेशन की जाए। हालांकि अगर हम बीते 1 साल की बात करें तो बीते 1 साल से लगातार यहाँ पर जो है फेंस पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सेना के जवान जो है सतर्क है, जो कि आप तस्वीरों में भी नज़र आएगा। ये हम बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है सेना के जवान इस सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। हालांकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिपब्लिक डे आ रहा है, और रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे हो, इन दिनों के मौके पर जो है सेना के जवान जो हैं इन जगहों पर ज़्यादा जो है अलर्ट रहते हैं, क्योंकि पूरे कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में इस वक्त अलर्ट है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, अगर हम पीर पंजाल, पुंछ, राजौरी की बात करें, वहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा जो है चलाया जा रहा है। और फ़िलहाल कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में भी जो है इन दिनों के मौके पर सीमा के जो है
बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अलर्टनेस दिखाई जा रही है। हम इस रिपोर्ट के ज़रिए आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो तस्वीरें शायद ही आपने कहीं पर देखी होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इस फेंस की हिफाजत की जाती है। साथ साथ जहाँ इस वक्त कश्मीर में कहीं पर बर्फ़बारी नहीं है और यहाँ पर -18 पारा चला जाता है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पर -8 डिग्री टेम्परेचर जो है चला गया है। और कितना मुश्किल है यहाँ पर इस सरहद पर जो है पेट्रोलिंग करना। आज आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि पेट्रोलिंग किस तरह की जाती है। बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कितना मुश्किल है यहाँ पर इस सरहद पर पेट्रोलिंग करना। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो। कुछ कठिनाइयाँ आती हैं मौसम और हालात और ट्रेन के हिसाब से, लेकिन हमारी ट्रेनिंग से हम इतने हैवी हो जाते हैं इस मौसम के ऊपर कि हमारे को ये कठिनाई नहीं लगती। हम उस हिसाब से हमारे को ट्रेन किया जाता है पहले से ही कि हम हर परिस्थिति से अपने आप को काबिलियत से निकाल सके। किसी भी मौसम से हमारे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे बर्फ़बारी हो, बारिश हो, किसी भी हो। हमारे को हर तरह के इक्विपमेंट, वेदर से लड़ने के लिए हर चीज़ की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे कि हमारे को ये कठिनाई ना ज़्यादा महसूस नहीं होती। इस पोस्ट की अगर हम बात करें तो इस पोस्ट पर अगर हम बीते साल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती है। आज अगरचे मौसम थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी इस पोस्ट पर बर्फ़ है। कितना मुश्किल है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक जवान को यहाँ पर इस फेंस की हिफाजत करने के लिए? इस ख़राब मौसम और ट्रेन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमारे को सबसे ज़्यादा मुश्किलात आती है अपने आप को सर्विलांस करने के लिए, यहाँ से अपना एरिया को अपने को डोमिनेट करने के लिए। उसमें हमारे को काफ़ी मुसीबत आती है, पर हमारा काम ही यही है कि हमारे को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, इसके लिए हम ये कठिनाइयाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे ये कितनी से भी ज़्यादा हो जाए तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, जिस हिसाब से जवान का भी कहना है कि यहाँ पर जो है दिन रात यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है और किस तरह से सरहद पर जो है निगरानी की जाती है। आज आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन फेंस, ये जो आप फेंस देख रहे हैं, बिल्कुल इसके साथ आप देख सकते हैं किस तरह से जवान अलर्ट होते हैं और ये पेट्रोलिंग जो है दिन रात इसी तरह लगी रहती है। यहाँ के जवान जो हैं बिल्कुल इस फेंस की हिफाजत किस तरह कर रहे हैं आप देख सकते हैं। जहाँ कश्मीर में अभी बर्फ़ कहीं पर नज़र नहीं आएगी, लेकिन वहीं अगर हम इन सरहदी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से स्नो है, काफ़ी ठंड है, -18 यहाँ पर पारा चला जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद आपको दिखा रहे हैं हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर, और हम जो है सरहद से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर सतर्क है जवान और साथ साथ ये फेंस है, ये LOC है। बार बार दुश्मन की कोशिश रहती है कि किस तरह से यहाँ पर अमन की जो सूरत हाल बनी है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें 2019 के बाद जो कश्मीर में अमन का माहौल चला है, यानी यहाँ पर जो है किस तरह से अमन अमान हर एक आम आदमी भी चाहता है और किस तरह से जो है माहौल बना है, उस अमन अमान की सूरत हाल को किस तरह से बिगाड़ा जा सके। अगर हम मिलिटेंसी की बात करें तो हालांकि मिलिटेंसी के वाक़यात में कश्मीर रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कमी नज़र आई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरहद पार से हमेशा ये कोशिश रहती है कि किस तरह यहाँ पर अमन की सूरत हाल को बिगाड़ा जा सके। रात के करीबन 12 बज चुके हैं और इस दौरान जो है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर फ़ौज तैनात है और सेना के जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं। और आपको मैं तस्वीर यहाँ से चलना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, और दिन रात जब सेना के जवान इन जो है कठिन रास्तों पर इस फेंस की हिफाजत करते हैं तो वाकई तौर पर ये काबिल तारीफ़ है। फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना मुश्किल है इस वक्त यहाँ पर। अगरचे पुंछ राजौरी सेक्टर की हम बात करें तो वहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा जो है चलाया जा रहा है। वहीं कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो बीते कुछ सालों से कश्मीर घाटी में जो मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ है, जो इन्फिल्ट्रेशन के वाक़यात हैं, उसमें कमी आ चुकी है। अगर हम इस इलाके की बात करें ख़ास तौर पर तो इस इलाके में जब सुनने में आया है कि कई बार अटेम्प्ट्स भी किए जाते हैं इन्फिल्ट्रेशन को, लेकिन यहाँ पर सेना के जवान जो है अलर्ट है, वो अलर्टनेस दिखाते हैं और किस तरह से इन सरहदों की हिफाजत की जाती है। आज आपको हम इन तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ठंड है, काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पर है, और इस ठंड के बावजूद जो है सेना के जवानों से हम बात करने की कोशिश करेंगे।
उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर दिन की शुरुआत होती है जब सेना के जवान इस हार्श विंटर में यानी इस मौसम में भी बर्फीले पहाड़ों से पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बार बार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स किए जाते हैं। हालांकि 26 जनवरी के मौके पर जो है सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा जाता है ताकि जो इम्कानी गड़बड़ है उस पर जल्दी से जल्दी निपटा जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं, मेरे कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे, बिल्कुल वो पहाड़ी जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और वहाँ पर आपको पाकिस्तान आर्मी की एक पोस्ट भी जो है दिखेगी। फिलहाल यहाँ पर धुंध छाई हुई है और इस धुंध के चलते शायद आप वो पोस्ट नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरे कैमरामैन आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर बर्फ़ से ढके पहाड़। हालांकि कश्मीर के मौसम की जब बात आती है तो कश्मीर में कहीं पर आपको बर्फ़बारी नज़र नहीं आएगी, यानी बर्फ़ से ढके पहाड़ नहीं नज़र आएंगे। लेकिन इस जगह की जब बात आती है तो वाकई तौर पर सेना का जज्बा और सेना के जवानों का हौसला यहाँ पर साफ तौर पर आपको नज़र आएगा कि किस तरह सेना के जवान यहाँ पर सरहदों पर हिफाजत करते नजर आ रहे होंगे। हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है यहाँ पर भी कई बार, अगर हम पास्ट मंथ की बात करें, लगभग नवंबर में यहाँ पर भी कई बार प्रयास किया गया, इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ की कोशिशें की गई, लेकिन सेना के जवानों ने इस जगह पर जो है कई बार उस प्रयास को जो है नाकाम कर दिया, विफल कर दिया, क्योंकि सेना के जवानों में हाल ही में अगर हम बात करें तो 3 आतंकवादी जो घुसपैठ के घर से इस तरफ आ रहे थे उनको मार गिराया और उनके कब्जे से जो है भारी मिकदार में गोला बारूद भी बरामद किया। यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है इन टेरेन्स पर पेट्रोलिंग करना, और वो भी दिन में भी और रात में भी। लगभग 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे इन बर्फानी जैसे पहाड़ों पर जो है सेना के जवान हमेशा सतर्क रहते हैं, इसी फिराक में रहते हैं कि कोई पार से दुश्मन मुल्क यानी पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है यहाँ पर अमन की सूरत हाल को जो है बिगाड़ा जा सके, लेकिन सेना के जवान हमेशा इस बीच तैयार रहते हैं। और इस रिपोर्ट के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना मुश्किल है इन पहाड़ों पर सरहद की हिफाजत करना, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तस्वीरों के ज़रिए कि किस तरह से सेना के जवान यहाँ पर हमेशा सतर्क रहते हैं। और पेट्रोलिंग की जब बात आती है तो किस तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है। बर्फ़ आपको नज़र आ रहा होगा, लगभग 3 से 4 फीट बर्फ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बीते साल की बात करें तो बीते साल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी। लगभग 10 से 12 फीट बर्फ़ इन जगहों पर होती है जो यहाँ पर सरहद यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर 10 से 12 फीट बर्फ़ जमा हुआ करती थी। लेकिन आज उसके मुकाबले में जो है कश्मीर में मौसम खुश्क चल रहा है और इस खुश्क मौसम के चलते बर्फ़ फ़िलहाल कहीं पर नहीं है, लेकिन इन सरहदों पर बर्फ़ आज भी मौजूद है। अगर हम राजौरी पुंछ इलाकों की बात करें, जो वहां पर पीर पंजाल रेंज है, वहां पर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है, लेकिन वहां पर की अगर हम बात करें, वहां की स्थिति की अगर हम बात करें, वहां पर हालात कई बार ख़राब किए जा रहे थे क्योंकि वहां पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही है। अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर जो कि पीर पंजाल पहाड़ी हो या उड़ी सेक्टर हो या मत्सिल हो या गुरेज सेक्टर हो, तो इन इलाकों में कहीं ना कहीं शांति नज़र आ रही है। अगर हम सीज़ फायर वायलेशन की बात करें तो बीते कुछ सालों से इन जगहों पर सीज़ फायर वायलेशन जो है नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर इन सरहदों पर लोग जो रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है अमन सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को भी ये डर हमेशा सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इस फिराक में रहता है कि कब इन इलाकों में माहौल ख़राब किया जाए। बीते महीनों की अगर हम बात करें तो बीते कुछ महीनों से लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अमन की जो सूरत हाल बनी हुई है, यानी साल 2019 के बाद कश्मीर का जो आम इंसान है, कश्मीर का युवा जो है वो मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुख्य धारा आने के लिए पाकिस्तान को ये बात जो है कभी हजम नहीं होती है। बार बार सिविलियन मूवमेंट्स को
को जो है सिविलियन पॉपुलेशन को इससे पहले जो है टारगेट गया है और उस बीच ये कहा गया है कि सिविलियन आबादी जो इन सरहदी इलाकों पर होती है वो फ़ौज के साथ रहती है, वो फ़ौज का साथ देती है और उस बीच कई सारी सिविलियन कैजुअलिटी भी हुई है अगर हम पास्ट ईयर्स की बात करें। लेकिन आज जिस हिसाब से सेना के जवान यहाँ पर सतर्क है, सेना के जवानों की पेट्रोलिंग हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो LOC उड़ी सेक्टर से। कैमरा पर साथ उड़ी LOC से मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ एक्स के लिए। A wonderful attempt and a report from my colleague Ashik Mir from the front lines of the Indian border. To talk more about this, joining us on the show is Colonel J.S. Sodhi, defence expert. Major Muhammad Ali Shah, defence expert, also joins us on the program. Group Captain UK Devnath, defence expert, also with us on the show. Ali, I'm going to begin with you, if you can hear me. Well, you know, this is a treacherous occupation, you know, guarding our borders, and that is the reason why we are able to very freely and very leisurely enjoy the 26th of Jan, the Republic Day parade in the capital tomorrow, which is of course going to be honored by the French president as well. Now, this was an elaborate report. It goes on to show you that how the nooks and crannies of protecting India and its borders is so important and pertinent. Absolutely, Vineet. Firstly, thank you very much for having me on your show, and you are the most mature anchors who handles a lot of difficult and sensitive subjects very, very delicately, Vineet. Now, the very fact is, here when we talk about terrorism, yes, they are attempts to invade our sovereignty by many foreign powers, by many, I will not say many, I'll say by Pakistan especially, and all the time. But we are adequate enough to give them a befitting reply and look after our borders and safeguard our interests. So most certainly, in fact, it takes me back exactly about 16 years back or so, when I led the Assam Rifles marching contingent on Kartavya Path. That time it was Rajpath. I had two fractured legs, but yet I did it. Why? Because I had instructors to train me in academy for any hardships like Colonel J. Sodhi. In fact, I have been molded by him, in fact, so I would give the entire credit to seniors of mine. Now, when they also trained us for that, they trained us very well to safeguard our borders, to make sure our national security is not compromised at any cost, anyhow. So most certainly anyone, जो भी हम पे नापाक नजरें गाड़ेगा Vineet, भी हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे. We are very clear of that. So the very fact is our soldiers, our defense forces are guarding the borders, and since tomorrow we are going to be celebrating our 26th January parade, in fact that's a very, very major feat at Kartavya Path. I would like to myself, personally, as a person who's marched on Kartavya Path, I would tell the nation that Bindas Rao, be at ease, enjoy the Republic Day parade celebrations, enjoy the Republic Day. Nothing is going to harm, no evil power can think of even coming close to us. Our forces are absolutely bang on Vineet. Colonel Sodhi, what do you make of you know, these sacrifices that you know, our soldiers make? You know, right on the eve of the 26th of January, it is important to recognize that all of this would not be possible had it not been for the valor, the commitment, the dedication, and of course, the astute sense of a presence of mind, you know, where you have terrorists attacking you from here and there. This is a crucial task and it has to be appreciated. Jai Hind, Vineet. It's my honor to be on a news channel and a privilege to be with the esteemed co-panelists. As we celebrate Republic Day tomorrow, like you rightly said, we should remember that the soldiers who have given up their lives for our respected motherland, and the soldiers who are serving and the soldiers who are retired, all have made such a priceless contribution to our country's security that today we can sit comfortably in our houses in any city or village in India that we are, with full, faith that nothing will happen to us and nothing has happened to us. It is because these brave and, valiant soldiers do not think twice when the call of duty makes them make the supreme sacrifice of their life. And the conditions that they serve in, probably if we see it firsthand, we will not believe it. The terrains are so tough, the mountain ranges are so high, the snow is so many meters deep, yet the Indian Army soldier is always smiling. He is always ready to come to the support of his motherland whenever the opportunity beckons. And this is the reason we have seen
that in numerous attempts that Pakistan or China has made, the Indian Army soldiers have never been found wanting. They have made the supreme sacrifice. They never let an inch of our respected motherland fall into the enemy's hands. Vineet, as we celebrate this pious and auspicious day tomorrow, through your esteemed channel, I would urge every Indian citizen to be worthy of the sacrifices which our soldiers have done or are doing. And the simple way which the Indian citizen can do is to respect the laws of India and to ensure that he or she, in whatever capacity or capability he or she is in, should strive to make our respected motherland a developed country and a superpower by 2047, as has been envisioned by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Group Captain UK Devnath, so your thoughts on what has been enunciated so far, and this is obviously something which cannot go unchecked. Oh yes, Vineet, a very pious day, a day when we can all remember our martyrs who have given their life for the safety and honor of our country. I must tell viewers that come what may, Indian Army, BSF, CRPF, our troops from SSB, CISF, they are very alert. They always put their duty first and their personal safety after that. The functions being conducted tomorrow in various places of Jammu and Kashmir, especially in Srinagar, will be well protected. It goes without saying this time there has been a great change. The change is that local people are supporting such events, which was never seen earlier. I spoke to my friends there, and they are saying that for the first time, the local population, the businessmen, the trading community, small-scale industry owners have come forward and have assured police of their cooperation. Local RWAs and local panchayats have gone and invited local civilians to attend the function in Bakshi Stadium tomorrow, which has never happened earlier. So a lot of goodwill is being generated in Valley. Fact remains that government conducted very successful event like G20. Amarnath Yatra went off very peacefully. Muharram procession was taken out with lot of goodwill. So people of Kashmir are finally realizing that they have to participate in a vibrant democracy like India, and India remains their sole goodwill projecting power. One good thing about these celebrations being held, Vineet, is that our young children, the teenagers, they are watching very closely that India is not only a nation, but it is, कहते हैं ना हिंदी में भावनाएं, soul and mind of India is reflected during such celebrations like 15th August, Independence Day, tomorrow 26th January, Republic Day. Yes, Vineet? Sir, appreciate you joining us. Would like to thank all our guests for being a part of this conversation. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.